Hello friends, today we will learn about chemical kinetics. As you can see that this chapter is from very well-known textbook. It's known as NCERT. CBSE boards are based on NCERT's textbooks. Okay, you can see they had made a watermark, copyright NCERT, not to be republished. Okay, so this copyright textbooks is belong to NCERT. Okay, so the purpose of this video lecture is that we will learn about the chemical kinetics. Okay, this is from the chapter 4th. Okay, and it is in 12th standard textbooks in first part. Okay, 12th standard. Okay, if you want to use these NCERT textbooks, then you can also download by browsing. Download NCERT PDF. Okay, NCERT 12th chemistry PDF, and you will get an option for download, and you can download it. Okay, so here we start with this chapter, and I want to let you know that this lecture is a bilingual lecture in which both Hindi and English will be used to explain this chapter. Okay, here we begin. Now what the objective says. Okay, here objective says that after studying this unit you will be able to define the average and instantaneous rate of reaction. Okay, then express the rate of a reaction in terms of change in concentration of either the reactant or product with time. Then distinguish between elementary and complex reaction. Then afterwards differentiate between the molecularity and order of a reaction. Then define rate constant. Afterwards discuss the dependence of rate of reaction on concentration, temperature and catalyst. Then derive integrated rate equation for the zero and first order reactions. Afterwards, determine the rate constant for zeroth and first order reaction. Then we will describe about the collision theory. Okay, so what we जब हम ये चैप्टर पूरा कर देंगे तो हम क्या क्या सीखने वाले हैं. हम रिएक्शन का एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन कर पाएंगे. ठीक है, और हम रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं टाइम के साथ साथ. फिर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बीच में क्या फ़र्क है वो हम सीख पाएंगे. फिर बाद में मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में क्या फ़र्क है. फिर रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना. फिर रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंस को डिस्कस करना टेम्परेचर और कैटलिस्ट के कॉन्सेंट्रेशन में. ठीक है, टेम्परेचर कैटलिस्ट के कॉन्सेंट्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंस को डिस्कस करना. फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव करना ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में. ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को डिराइव करना. फिर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करना. फिर कोलिजन थ्योरी को डिस्क्राइब करना. ठीक है, फिर ठीक है, तो अब we will start with the chemical kinetics. Okay, how this chemical kinetics will help us. So it is already written in a pink font color that chemical kinetics help us to understand how chemical reaction occurs. तो पिंक कलर जो गुलाब रंग का जो फॉन्ट कलर है उसमें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में एक लाइन सेंटेंस दिया है कि केमिकल काइनेटिक्स हमें हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि केमिकल रिएक्शंस आखिरकार कैसे होता है. ठीक है, तो केमिस्ट्री बाय इट्स वेरी नेचर इज कंसर्न विद चेंज. Substance with well-defined properties are converted by chemical reaction into other substance with different property. For any chemical reactions, chemists try to find out. ठीक है, केमिस्ट्री अपने नेचर के हिसाब से हमेशा जो नेचर है केमिस्ट्री का वो हमेशा ज़्यादा कंसर्न रहता है चेंजेस से. ठीक है, सब्सटेंस जो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है
वो कन्वर्ट होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से, और जो सब्सटेंस जो कन्वर्ट होता है दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट जो है, ठीक है, वो क्या ढूंढता है? Feasibility of a chemical reaction, which can be predicted by thermodynamics, as you know that the reaction with delta G smaller than 0 at a constant temperature and pressure is feasible. तो केमिकल रिएक्शन का फिजिबिलिटी, ठीक है, जो प्रेडिक्ट कर सकता है थर्मोडायनेमिक्स की वजह से, ठीक है, ठीक है, जैसे कि रिएक्शन जिसमें डेल्टा जी 0 से काफ़ी छोटा है कांस्टेंट टेम्परेचर में, ठीक है, और प्रेशर फिजिबल है, ठीक है। फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, तो केमिकल रिएक्शन का पॉसिबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकता है थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है, अगर रिएक्शन जो है इसका डेल्टा जी स्मॉलर देन 0 रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर जो फिजिबल है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर जो पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा प्रेशर जो पॉसिबल है। फिर एक्सटेंट टू विच रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, डेल्टा जे अगर स्मॉलर देन 0 है तो इसका क्या मतलब है, निकाल सकते हैं। डेल्टा जे अगर स्मॉलर देन 0 है तो मतलब ये जो जिस रिएक्शन की बात करें वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करें, जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहता है, ठीक है, ठीक है, जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहता है, ठीक है, जो उसका ही गिव्स फ्री एनर्जी जो है 0 से काफ़ी कम होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, रिएक्शन कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, प्रोसीड हो सकता है, वो भी डिटरमाइन कर सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम से, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो कंसेप्ट 11th स्टैंडर्ड में है, ठीक है, ये हम ज़रूर सीखेंगे, ठीक है, कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन दैट इज टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन का स्पीड मतलब रिएक्शन कितना टाइम लेता है इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए, वो भी हम सीख पाएंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद द फिजिबिलिटी and extent, it is usually important to know the rate and a factor controlling the rate of chemical reaction for its complete understanding, ठीक है। तो फिजिबिलिटी मैंने कहा है, फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि कितना पॉसिबल है और कितना एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, और इतना ही इम्पोर्टेंट है कि रेट या फिर फैक्टर जो कंट्रोल करता है केमिकल रिएक्शन के रेट को, ठीक है, ताकि वो कंप्लीट हो जाए उसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो हम ये भी जानेंगे कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ केमिकल reactions, what is the rate of chemical reactions, okay, which control the complete possibility of a reaction, ठीक है, वो हम समझेंगे। Along with the feasibility and extent, it is equally important to know the rate and the factor controlling the rate of a chemical reaction for its complete understanding। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ पॉसिबिलिटी, रिएक्शन का पॉसिबिलिटी और रिएक्शन कितना तक हो सकता है वही इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है किस फैक्टर की वजह से कंट्रोल होता है और कौन सा रेट रहता है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है, ताकि वो कंप्लीट हो जाए, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन भी समझ लेंगे और क्या ऐसा फैक्टर है, क्या ऐसा प्रॉपर्टी है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल विच पैरामीटर डिटरमाइन एज टू हाउ रैपिडली फूड गेट्स स्पॉइल्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमें छोटा सा एक एग्जांपल मिल रहा है केमिकल काइनेटिक्स का कि विच पैरामीटर डिटरमाइन एज हाउ रैपिडली फूड गेट्स स्पॉइल्ड। पैरामीटर का मतलब है प्रॉपर्टी, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना जल्दी फूड ख़राब हो सकता है, कितना जल्दी खाना ख़राब हो सकता है। ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिससे हमें ये पता चल सकता है
कि कितना जल्दी खाना ख़राब हो सकता है, ठीक है। और ये पैरामीटर सिर्फ खाने में ही नहीं, ड्रग्स में तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स है, ठीक है। वैलिडेशन है, वेरिफिकेशंस है, बहुत कुछ है। सिर्फ फूड में ही नहीं, ड्रग्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में, कॉस्मेटिक्स में, ओके। ये अलग अलग पैरामीटर है जिससे पता लगा जा सकता है कि कितना टाइम लगता है या कितना जल्दी वो स्पॉइल हो सकता है। हाउ टू डिज़ाइन ए रैपिडली सेटिंग मटेरियल फॉर डेंटल फीलिंग, ठीक है। कैसे एक मटेरियल को डिज़ाइन करें, ठीक है, डेंटल फीलिंग के लिए कि वो रैपिडली सेट हो जाए, ठीक है। और ठीक है, और व्हाट कंट्रोल द रेट एट विच फ्यूल बर्न इन एन ऑटो इंजन, मतलब ऑटो इंजन में जो फ्यूल है, ठीक है, वो फ्यूल जो है जो वो बर्न होता है, ठीक है, तो उस फ्यूल जो बर्न होता है उसका जो रेट है, ठीक है, वो किसकी वजह से कंट्रोल होता है, ठीक है। ऑल दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemical reaction rate and their mechanism called chemical kinetics, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, कि रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है, कैसे कंटिन्यू होता है, कब तक रिएक्शन रहता है, फिर ऐसा क्या है कि जिससे खाना ख़राब हो सकता है, ऐसा क्या है जिससे ड्रग डिग्रेड हो सकता है, ऐसा क्या है जिससे कोई भी मेटल रैंसिड हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्या चीज़ किसी फ्यूल या किसी ऑयल को कंट्रोल करता है बर्न होने से, ऑटो इंजिन्स में, ठीक है। ऐसा कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो डेंटल फिलिंग के लिए जल्दी फटाफट ठीक है सेट हो जाए, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है आंसर होता है, ठीक है, इस केमिस्ट्री के ब्रांच से जो डील करता है रिएक्शन रेट और मैकेनिज़्म को, उसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो हमें पता चला केमिकल काइनेटिक्स क्या है, कि केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच है जिससे हम स्टडी करते हैं, ठीक है, रिएक्शन के रेट को स्टडी करते हैं और उसके मैकेनिज़्म को स्टडी करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है ये केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को स्टडी करता है और मैकेनिज़्म को भी स्टडी करता है। तो क्या क्या स्टडी करता है, केमिकल रिएक्शन का रेट को और मैकेनिज़्म को, ठीक है, इनको स्टडी करता है, ठीक है। तो ये है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, एक ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के रेट को स्टडी कर सकते हैं और उस रिएक्शन के मैकेनिज़्म को भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये है केमिकल काइनेटिक्स। और हमें पता चला कि केमिकल काइनेटिक्स जो है हेल्पफुल है ये समझने के लिए कि रिएक्शन कैसे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और हमें ये भी पता चला कि केमिकल काइनेटिक्स जो है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एप्लीकेशन का, ठीक है। हमने छोटा सा एग्जाम्पल सीखा कि खाना कितना जल्दी ख़राब हो सकता है, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिससे पेट्रोल या फ्यूल का रेट, ऐसा कौन सा मतलब फ्यूल या पेट्रोल का ऐसा रेट जिसमें ऑटो इंजन में जलता है, तो वो जो सब होता है, ठीक है, वो क्या है ऐसा पैरामीटर जो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और ऐसा मतलब कि ऐसा मटेरियल को कौन से टाइप का मटेरियल को डिज़ाइन करें जो जल्दी डेंटल क्या फीलिंग के लिए यूज़ हो सके, ठीक है। तो ये सब स्टडीज़ के लिए, तो ये सब में केमिकल काइनेटिक्स ही काम आता है, ठीक है। देन वर्ड काइनेटिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स काइनेसिस मीनिंग मूवमेंट। तो हमें जानना चाहिए काइनेटिक पहले क्या है।
काइनेटिक मतलब है काइनेसिस, ठीक है। ये काइनेसिस वर्ड जो है ग्रीक से आया है और ग्रीक में काइनेसिस का मतलब है मूवमेंट, ठीक है। तो हम केमिकल रिएक्शन के मूवमेंट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स मतलब हम केमिकल रिएक्शन के मूवमेंट को स्टडी कर रहे हैं, जो हमें हेल्प करेंगे केमिकल रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। देन thermodynamics tells only about feasibility of a reaction, whereas chemical kinetics tell about the rate of reactions, ठीक है। अभी थर्मोडायनेमिक्स है सिर्फ हमें बताता है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स हमें हेल्प करता है बताने के लिए कि रिएक्शन का रेट क्या है, ठीक है। रिएक्शन का रेट क्या है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या हेल्प करता है हमें बताने के लिए। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है रिएक्शन के बारे में, कि कैसे कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स जो है वो बताता है कि रिएक्शन का रेट क्या है, ठीक है। रिएक्शन का रेट क्या है, ठीक है। रिएक्शन का रेट क्या है, ठीक है, वो बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल thermodynamics data indicate that diamond shall convert to graph, but in reality the conversion rate is slow, that the change is not perceptible all. अभी फॉर एग्जांपल क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शन का पॉसिबिलिटी बताता है और केमिकल काइनेटिक्स सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के रेट के बारे में बताता है। अभी थर्मोडायनेमिक्स के डेटा के हिसाब से डायमंड जो है, ठीक है, वो शायद से कन्वर्ट हो सकता है ग्राफ में, पर रियलिटी में ऐसा कन्वर्शन रेट हो ही नहीं सकता और ऐसा रेट काफ़ी स्लो है, ठीक है। हमने ये सुना है कि ग्राफाइट से डायमंड बन सकते, किसी भी कोयले से डायमंड बन सकते, लेकिन डायमंड वापस कोयले में बदल सकता है। ये रियलिटी मतलब ये काफ़ी अटपटा लगता है, ये एकदम रियल लगता नहीं है, क्योंकि डायमंड का कोयला में बदलना काफ़ी उसका रेट जो है, रेट कन्वर्शन काफ़ी स्लो है, ठीक है। और ऐसा चेंजेस पॉसिबल ही नहीं है। एक बार ग्राफाइट डायमंड में बदल गया तो बदल गया, लेकिन डायमंड वापस कोयले में बदल गया, ग्राफाइट में बदल गया, तो ये रियल लगता नहीं है और रियल हो भी नहीं सकता है। Therefore the most people think the diamond is forever, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, ठीक है, डायमंड कोयले में बदल सकता है, ऐसा थर्मोडायनेमिक्स कहता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए लोग बोलते हैं कि डायमंड इज़ फॉर एवर। यस, डायमंड इज़ फॉर एवर। देन kinetic study not only help us to determine the speed or rate of a chemical reaction but also describe the condition by which reaction rate can be altered, ठीक है। तो काइनेटिक स्टडीज़ यहाँ पे काम आता है, क्योंकि काइनेटिक्स सिर्फ हेल्प नहीं करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि केमिकल रिएक्शन का स्पीड कितना है या केमिकल रिएक्शन का रेट कितना है, ये हमें ये भी समझाता है ऐसा कौन सा कंडीशन चाहिए किसी भी रिएक्शन रेट के लिए कि वो ऑल्टर हो सके, कि वो चेंज हो सके। ऐसा कौन सा रिएक्शन रेट जो है वो चेंज होने के लिए, ठीक है, ऐसा कौन सा रिएक्शन रेट, ऐसा कौन सा रिएक्शन का स्पीड, ठीक है, वो चेंज होना चाहिए। और वो चेंज होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, वो केमिकल काइनेटिक्स बताता है, ठीक है। द फैक्टर्स सच एज कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन के ऐसा कौन सा फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है। तो ये फैक्टर है जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ठीक है, ये रिएक्शन के रेट को
असर करता है। ठीक है, तो रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन का जो स्पीड है, वो कैसे, वो कौन से फैक्टर से अफेक्ट करता है? कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे फैक्टर जो है, और कैटलिस्ट भी, राइट, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, तो ये सारे फैक्टर जो है, ठीक है, रिएक्शन के रेट को पे असर करता है। At the macroscopic level, we are interested in amount reactor or form and rate of the consumption or formation. तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में हमें इंटरेस्टेड है कि अमाउंट जो रिएक्ट होता है, फॉर्म होता है, ठीक है, उसका कंसप्शन या फॉर्मेशन, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम इंटरेस्टेड है कि अमाउंट जो रिएक्ट होता है या अमाउंट जो फॉर्म होता है, ठीक है, और कंसेप्शन या फिर फॉर्मेशन का रेट, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में फॉर्मेशन और कंसेप्शन का रेट और कितना फॉर्म होता है, कितना रिएक्ट होता है, उस पर माइक्रोस्कोपिक लेवल में इंटरेस्टेड है, ठीक है। एट मॉलिकुलर लेवल द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग कॉल्यूशंस, ठीक है। पर मॉलिकुलर लेवल में रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, जिसमें ओरिएंटेशन इन्वॉल्व है, मॉलिक्यूल का एनर्जी जो बहुत सारे कॉल्यूशन में जाता है, ठीक है। तो मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब केमिकल काइनेटिक्स कैटेगराइज करता है मैक्रोस्कोपिक लेवल को और माइक्रोस्कोपिक लेवल को, ठीक है। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका असर कुछ फैक्टर्स पर पड़ता है, फैक्टर्स से कि कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सभी जो है रिएक्शन के रेट पर असर करता है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन जो है कैटेगराइज होता है मैक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक लेवल, जो बड़े ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बड़े ऑब्जेक्ट है, ज़्यादा अमाउंट का रिएक्टेंट है या ज़्यादा अमाउंट का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में कैटेगराइज होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल, जिसमें मैकेनिज़्म में कौन सा ओरिएंटेशन हो सकता है, वो सब है, ठीक है। फिर एट द मोलिकुलर लेवल रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल में कितना अमाउंट रिएक्ट किया, कितना अमाउंट फॉर्म हुआ, ठीक है, कितना कंसेप्शन हुआ, कितना मतलब फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ठीक है। तो उस पर इंटरेस्टेड है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल में कितना मॉलिक्यूल का एनर्जी, रिएक्शन मैकेनिज्म में ओरिएंटेशन और कॉल्यूशन, ये सब डिस्कस होगा, ठीक है। इन द यूनिट वी शैल बी डीलिंग विद एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, सो इस यूनिट में, इन दिस यूनिट वी शैल बी डीलिंग विद एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन में हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का एवरेज और इंस्टेंटेनियस को, एंड द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग दिस, और जो भी फैक्टर है, जो भी पैरामीटर है जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पे असर करता है। सम एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द कलर्शन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट ऑल्सो गिवन। तो एलिमेंट्री आइडियाज़ रिएक्शन का रेट का कलर्शन थ्योरी के बारे में, ठीक है, वो भी बताया गया है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस लेटेस्ट फर्स्ट लर्न अबाउट द रिएक्शन रेट।
और ये सब और अंडरस्टैंड करने के लिए हमें रिएक्शन रेट को सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम क्या क्या सीखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन का एवरेज और इंस्टेंटेनियस को हम स्टडी करेंगे। जो भी फैक्टर जो है इस रेट ऑफ रिएक्शन पर असर करता है, एलिमेंट्री रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में असर जो भी करता है फैक्टर, वो हम सीखेंगे क्या क्या फैक्टर असर करता है। और कुछ एलिमेंट्री आइडिया कलेक्शन थ्योरी, रिएक्शन कलेक्शन थ्योरी के बारे में, और हम अंडरस्टैंड करेंगे रिएक्शन रेट के बारे में सीखने के लिए। ठीक है।